guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. आज हम लोग बैक टू स्कूल का एक और सेशन देखने वाले हैं फॉर ICSE क्लास 8 बायोलॉजी. We have actually covered one chapter that was transportation in plants, and then after we had covered one topic, reproduction in plants, and today we are going to deal with the topic reproduction in animals. Let's begin with the session. But guys, yeah, of course, before beginning I have a beautiful motivational quote to inspire you by the one of the greatest, APJ Abdul Kalam, of course. So, lovely things to learn from water. Adjust yourself in every situation and in any shape. You could have seen a water. अगर आप उसको ग्लास में डालते हो ना तो ग्लास में एडजस्ट हो जाती है, ग्लास के शेप में आ जाती है. अगर आप उसको जग में डाल रहे हो तो जग के शेप में आ जाएगी. अगर आप उसको एक बोल में डाल रहे हो तो बोल के शेप में आ जाएगी. पर सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपको वाटर से सीखनी है वो ये है कि वो किसी के भी शेप में आ जाए लेकिन अपना खुद का रास्ता हमेशा ढूंढेगी. It will always find its own way to flow, isn't it? Of course it does. So this is the thing that you have to learn from water. You need to adjust in each and every situation and in each and every shape, but most importantly you need to find your own way to flow. Now guys, beginning with the session with the table of contents. First, we are going to deal with the introduction to the topic. Of course, introduction is literally very important, or you guys, if your basics are not clear, you might get very confused with the topic. After introduction, asexual reproduction in animals such as Hydra, Amoeba, Paramecium, and of course, etc. We are going to look at this topic, that how do animals around us reproduce asexually. Then sexual reproduction in humans. How do humans reproduce sexually? These are the topics that we are going to be covering today for this session, people. So are you guys ready for the session? If you guys are, then without doing any further ado, let's begin. So first of all, introduction. Now with the introduction, first thing that I want you guys to revise is, देखो लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन सेशन किया था. डू यू गाइज रिमेंबर? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का भी पार्ट कवर किया था. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिसके मैंने आंसर्स भी बताए थे, लेकिन इस सेशन में मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस पूछूंगी, उनके आंसर्स नहीं बताऊंगी. यू नो वाई? ठीक है, क्योंकि ताकि आप मुझे पता चले कि हाउ मच डू यू एक्चुअली रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट सेशन, एज वेल एज कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे. पहला क्वेश्चन तो एकदम बेसिक है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन. What is reproduction? ठीक है, ये हम लोग आधा लिख देते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज why is it important? Why is reproduction important? What is the even use of reproduction? Reproduction is exactly not a life process कि आप अगर नहीं रिप्रोड्यूस करोगे you will not live. तो क्या ऐसी चीज़ है जो उसको इम्पोर्टेंट बना रही है? What is the factor? तो why is it even important? और थर्ड जो है वो है कि what are genes? What are genes? ठीक है, तो ये पार्ट्स आपको लिखना है. अब चलिए गाइस, ये सारे तो हो गए आपके क्वेश्चन जो आपको खुद लिखने हैं. कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर्स लिख देना होमवर्क क्वेश्चंस की तरह. तो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट हम लोग बिगिन करते हैं आज का इंट्रोडक्शन सेशन विद मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब यार रिप्रोडक्शन के क्या क्या मोड्स होते हैं? तो देखो, रिप्रोडक्शन के मेनली 2 मोड्स होते हैं, है कि नहीं? यस, एब्सोल्युटली, लास्ट सेशन में भी पढ़ा था. एक होता है आपका एसेक्सुअल और एक होता है आपका सेक्सुअल मोड. अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता ये है कि ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, व्हाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है, ध्यान से देखो. कुछ मतलब इसके भी सब टाइप्स होते हैं ना. अब देखो, आपने प्लांट्स का तो पढ़ा था, एनिमल्स में भी कुछ इसी टाइप का होता है. ध्यान से आप लोग देखो, यहाँ पे एक होता है आपका फिजन. ये जो आपका फिजन है वो क्या हो रहा होता है? फिजन में होता है बेसिकली ये कि आपका एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है, एक आपका ऑर्गेनिज्म होता है, एक इस तरह से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं अमीबा. तो वो क्या करेगा, इट विल डिवाइड, सेल विल डिवाइड. ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर सेल इस तरह से स्प्लिट होगा, फिर वो कम्प्लीटली एक एक सेल ऐसे डिवाइड हो जाएगा. एक न्यूक्लियस इधर, दूसरा न्यूक्लियस इधर,
तो ये सेल डिवीजन हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं फिजन। अब फिजन दो टाइप के होते हैं, पहला क्या होता है बाइनरी फिजन, दूसरा क्या होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी मतलब 2, मतलब 2 सेल्स में डिवाइड हुए जैसे अमीबा में। मल्टीपल फिजन में ये 2 से ज़्यादा सेल्स में 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में जब वो डिवाइड हो पा रहा हो। तो फिर आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि वो जो आपका ये फॉर एग्जांपल देखो, फ्रेगमेंटेशन में भी आप एल्गे का एग्जांपल ले लेते हैं। एल्गे क्या करेगा, इट विल ब्रेक इनटू सम पीसेस। ये एक पूरा एल्गे इट इज गोइंग टू ब्रेक इनटू सम पीसेस, और हर एक पीस एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगी, एकदम सिंपल। नाउ आपका आता है रीजनरेशन, जो कि आपने लास्ट में नहीं पढ़ा होगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। GENERATION, रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका एक हाइड्रा है, वो इस तरह से एक्सीडेंटली वो बीच में से टूट गया, उसको चोट लग गई, आधा हाइड्रा इधर आधा हाइड्रा इधर। ह्यूमंस के साथ भी ऐसा होता है ना, अगर ट्रेन के नीचे आ गए, आधी टांग उधर दूसरी टांग इधर, ऐसे हो जाती है ना, वैसे आप इसमें पता है क्या होने वाला है, ये जो एक हाइड्रा ये आधा हुआ ना, वो एक ऑर्गेनिज्म रहेगा, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, मतलब 2 ऑर्गेनिज्म बन गए। फिर से इसका आधा पार्ट जनरेट होगा, इसका आधा पार्ट फिर जनरेट होगा, मतलब दोनों एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। इसी को बोला जाता है रीजनरेशन, जो कि प्लेनेरिया में भी देखा जाता है। आपने देखो स्टारफिश देखा होगा, स्टारफिश का ना आप उसका एक पार्ट कट कर दो तो फिर वो ग्रो हो जाता है। हमारा एक हाथ कट कर दो तो हमारे हाथ ग्रो हो जाएगा क्या? इफ़ यू कट योर वन हैंड इज इट गोइंग टू ग्रो? ऑफ कोर्स नॉट गाइस, इट इज़ नॉट गोइंग टू ग्रो। तो ये होता है, लेकिन स्टारफिश के साथ क्या है कि उसका ग्रो हो जाएगा, लिजर्ड्स के साथ क्या है उनके टेल्स ग्रो हो जाएंगे, उसी तरह हाइड्रा के साथ क्या हो रहा है। अब क्या होता है गाइस, नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है बडिंग। बडिंग में क्या हो रहा है कि आपके बर्ड्स ग्रो हो रहे हैं। आज ये आपका एक हाइड्रा है, अब क्या करेंगे, इसके पास कुछ ऐसे बर्ड्स ग्रो हो जाएंगे, बर्ड्स ठीक है, दिस आर लाइक बर्ड्स है ना। और फिर वो बर्ड्स क्या करेंगे, फिर ये डिटैच हो जाएंगे आपकी बॉडी में से, मतलब ये बर्ड्स अलग हो जाएंगे बड़े होते होते, फिर कुछ इस तरह से, फिर ये एक बार डिटैच हो गए तो डिटैच होकर ये एक अपना इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देंगे। दे आर गोइंग टू मेक देम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे मैच्योर होने के बाद। फिर आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्लांट लिया, ठीक है, उसको बीच में से कट कर दिया, फिर रोज़ प्लांट है, इधर से आपने कट कर दिया वेजिटेटिव पार्ट्स, फिर उसका स्टीम, एक वेजिटेटिव पार्ट है, स्टीम को आपने अगर सॉइल में लगाया रोज़ का तो क्या होगा, वो ग्रो हो जाएगा एक नए इंडिविजुअल में। तो इसको क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो सिर्फ रूट से नहीं, स्टेम से नहीं, लीव से नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल मेथड से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर। अब इन सबको डिटेल में ऑफकोर्स आप मेरे लास्ट सेशन को देख के पढ़ोगे। अब फिर आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। क्या आता है फिर आपका स्पोर फॉर्मेशन? अब इसमें क्या होता है, एक ये स्पोर्स आर योर माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, जो कि क्या करेंगे, जब उनका केस बस्ट हो जाएगा तो दे आर गोइंग टू स्प्रेड इनटू एयर ऐसे। फिर वो जब लैंड पे है ना, सॉइल पे लैंड करेंगे तब क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे आर गोइंग टू जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है आपका राइजोपस में। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन राइजोपस। तो देखो यार, इतना सब क्लियर हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखी थी प्लांट्स के अंदर, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन से स्टार्ट करते। देखो अभी मैंने इतना सारा रिवाइज करा दिया तो अब इतना ये टॉपिक बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं रहेगा। फिजन में क्या हो रहा है, देयर कटिंग, ठीक है, वो बीच में से कट हो रहे हैं। कट हो रहे हैं का क्या मतलब है, वो डिवाइड हो रहे हैं, कट नहीं हो रहा है कि आपने काट दिया, वो डिवाइड हो रहे हैं। अभी हमने बताया मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है, ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। एग्जाम्पल्स आपके प्लाज्मोडियम एंड अमीबा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, वो जब वो डिवाइड हुआ तो 2 ऑर्गेनिज्म में ही सिर्फ नहीं डिवाइड हुआ, 2 सेल्स नहीं बनाए, 2 ही डॉटर सेल्स नहीं दिए, 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स भी देते हैं, तो मल्टीपल फिजन में आ गया। वेल बाइनरी फिजन में क्या होता है कि सिर्फ 2 ही डॉटर सेल्स देते हैं। वेल बाइनरी फिजन में क्या होता है कि सिर्फ 2 ही डॉटर सेल्स देते हैं। तो ये था बाइनरी फिजन एंड देन मल्टीपल फिजन। अब देखो ये आपका अमीबा है, थोड़ा क्लियर नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन देखो ये पेरेंट सेल है, अमीबा में ये पेरेंट सेल है ना, इसके पास क्या है, ये बीच में, इसको बोला जाता है आपका न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। हाँ गाइस, ये न्यूक्लियस क्या होगा, सबसे पहले ये डिवाइड होगा। सबसे पहले क्या होता है, ये न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है, ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है इनका रिप्रोडक्शन, ध्यान से देख लो। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो सबसे पहले फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट करता है, दोनों स्प्लिट होना। देख लो अलग अलग होगा, लेकिन ये जो चेन है ना, इसको टूटनी जरूरी है। फिर क्या होगा, ये चेन टूट जाएगा और 2 अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाएंगे। क्या होंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स।
अब इस तरह से क्या होता है, अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इस तरह के ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते तो इनका रिप्रोडक्शन भी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। अब यार बडिंग की देखते हैं। अब बडिंग क्या है, तो बडिंग इज बेसिकली आपका एक इंडिविजुअल है, उस पर बर्ड्स ग्रो हुआ कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे 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 बर्ड्स ग्रो हुए, ऐसे तो नहीं दिखते हैं, माई ड्राइंग इज़ वेरी बैड ऑफ कोर्स। फिर वो डिटैच होकर एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा। रीजनरेशन भी आपको मैंने बता दिया। अब देखो रीजनरेशन का एक बहुत अच्छा सा फैक्ट सुनो कि आपको पता है कि जो लिजर्ड्स होते हैं, ठीक है, देख रहे हो ये यक लग रहा है ना लिजर्ड्स देखने में, या लिजर्ड्स के साथ में बड़ी अच्छी दुश्मनी होती है हम सबकी। क्या होता है कि लिजर्ड आपको एक रूम में दिखा नहीं कि यक मुंह से निकला नहीं, और फिर लिजर्ड्स के साथ क्या होता है कि वो हमको देखता है, उसको लग रहा होता है कि हम उसको डराएंगे, वो हमसे डर रहा होता है, लेकिन हम उससे डर रहे होते हैं, हम उस लिजर्ड से डर रहे होते हैं। एंड फिर ऑफ कोर्स फिर क्या होता है कि वो अगर नीचे वगैरह गिरा तो जब वो कमरे में होता है ना तो नज़र उसी पे होती है, कहीं मेरे पे तो नहीं आ रहा यार, क्या हो रहा है, कहाँ जाएगा ये, कहीं बेड पे तो नहीं जा रहा, बेड पे तो मुझे सोना है, कहीं इधर तो नहीं जा रहा। और फिर अगर वो बेड पे चला गया कहीं से भी तो वो बेड शहीद हो जाता है, मतलब हम यूज़ नहीं करते एनी मोर, उसका बेडशीट चेंज करके फिर यूज़ करना होता है, इज़न्ट इट। तो ये सारी चीज़ें होती है लिजर्ड्स के साथ। लेकिन यार ये जो लिजर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं यक ऑर्गेनिजम्स है ना, हमको नहीं पसंद है ये। तो इन ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलिटी होती है जो हम ह्यूमंस में बिल्कुल नहीं है। हम ह्यूमंस इतने भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है, ठीक है, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट है। तो क्या वो एक स्पेशलिटी है? एक्चुअली होता ये है कि जब कोई प्रीडेटर होता है जो इस पे हमला करता है, वो जब इस पे हमला करता है इसको खाने के लिए, तो जब ये इस पे हमला करता है ना तो प्रीडेटर से बचने के लिए ये अपनी टेल को तोड़ देता है। कैसा लगा सुन के ये फैक्ट? अब ये जब अपनी टेल को तोड़ देगा तो क्या होगा, वो प्रीडेटर इसका टेल ले लेगा, इसको ऑर्गेनिज्म समझ के वो टेल से खेलता रहेगा, खाता रहेगा, तब तक आपका लिजर्ड भाई वगर पूछ के भाग गया, मतलब अपनी पूछ तोड़ दिया, वगर पूछ के वो भाग गया। और फिर क्या हो रहा होता है कि ये इतना अक्लमंद है कि फिर अपनी पूछ वो उगा भी लेता है दूसरी बार, तो है ना, यस, लाइक दे आर वेरी क्लेवर, ठीक है, इट रीजनरेट्स लॉस्ट टेल। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑब्वियसली। तो देखो स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, स्पोर्स बन रहे हैं एंड देन आप ये बेसिकली कॉमन है आपका राइजोपस में, ये सारा भी मैंने बता दिया। अब क्या होता है, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके इस चैप्टर में से जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो मेनली इसी टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, और एक प्लांट्स वाले टॉपिक के होते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करे थे सारे, और एक ये टॉपिक में। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना ह्यूमंस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इफ़ वी कंपेयर इट टू द अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पेरिमीशियम, हाइड्रा, उनसे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा होता है कि देखो रिप्रोडक्शन में हमारे भी दो ही पार्ट से, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, लेकिन दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये दो क्यों हुए? क्योंकि यार इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। क्या होता है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो ये होता है इसमें। अब देखो समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो आप क्या हो रहा है, ये आपका जो ये ऑल ओवर है ना डायग्राम है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसको क्या बोला जाता है कि जो पाउच दिख रहा है ना आपको, ये जो पाउच है जिसके अंदर ये टेस्टिस है, इनको बोला जाता है सबसे पहले ये वाली पार्ट को, ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इनको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है, ये है आपके टेस्टिस। अब ये टेस्टिस होता है ना, यहाँ पे क्या बन रहा होता है आपका जो स्पर्म होता है। व्हाट इज स्पर्म गाइस? स्पर्म इज बेसिकली नथिंग बट अ मेल गैमिट। मेल गैमिट को क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। मेल गैमिट को क्या बोलते हैं? मेल गैमिट, या फिर मेल जर्म सेल्स को क्या बोला जाता है? स्पर्म। यहाँ पे स्पर्म है, और जहाँ पे टेस्टिस होता है ना, वो जिस पाउच में होता है ना, उस पाउच को क्या बोला जाता है? स्क्रॉटम, ठीक है, उस पाउच को बोला जाता है स्क्रॉटम। तो अब यार ये हो गया। अब यहाँ पे अब देखते हैं, देखो आपका जो यहाँ पे टेस्टिस है वो साथ साथ में एक और वर्क करता है कि इट रिलीजेस द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन विच आर सेक्स हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन आर ऑल्सो नोन एज द सेक्स हार्मोन्स। तो मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, या दिस विल बी फाइन। नाउ सेकंड, फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं? 2 होते हैं उनके पास। एक होता है पहला
ऑइस्ट्रोजन। अब देखो यार, ये दिखने में क्या लग रहा है, ऑइस्ट्रोजन है ना, हम इसको ऑइस्ट्रोजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है, लेकिन ये बेसिकली होता है सिर्फ एस्ट्रोजन। आपको इसको ऑइस्ट्रोजन करके नहीं बोलना है, आपको सिर्फ इसको एस्ट्रोजन बोलना है, लेकिन ओ आप स्पेलिंग में लिखना, ठीक है, ओ आप लिख सकते हो स्पेलिंग में। तो इसको क्या लिखना है, ऑइस्ट्रोजन, लेकिन बोलना क्या होता है, एस्ट्रोजन। दिस इज बेसिकली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फिर एक होता है फीमेल का सेक्स हार्मोन, ठीक है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। अब गाइज इतना हो गया। अब आता है हम लोग ये वास डिफरेंस पे। वास डिफरेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वास डिफरेंस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना, ये वास डिफरेंस है, जो मैं ब्लू ब्लू कलर कर रही हूँ, देख रहे हो आप। तो ये जो, ये देखो, ये टेस्टिस है आपकी, ये टेस्टिस है आपकी, यहाँ से आपका जो ये कनेक्ट कर पा रहा है, ये वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस क्या होता है कि ये है आप यहाँ से टेस्टिस के पास स्पर्म है, क्या है स्पर्म, किसके पास है, टेस्टिस के पास, लेकिन उसको कहाँ तक जाना है, यूरेथ्रा के तक जाना होता है। कहाँ तक जाना होता है, यूरेथ्रा तक। अब टेस्टिस से यूरेथ्रा तक कौन भेजेगा उसको, कौन भेजेगा उसको, ये देख रहे हो, टेस्टिस से लेके यहाँ से ये जाता है और यूरेथ्रा तक लाता है। ये यूरेथ्रा तक आना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि यूरेथ्रा से निकलेगा तभी ना ये यहाँ से बाहर निकलेगा, एंड देन इट इज़ गोइंग टू एंटर इनटू द फीमेल बॉडी, isn't it? It is going to enter into the female body through the vagina. तो इस तरह से this is how the male reproductive system works. एक बार और ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से देख लो। ये आपका क्या होता है, टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म बन रहा है, स्पर्म बनता है और वो कहाँ पे होता है, स्क्वार्टम में। स्क्वार्टम में मतलब एक पाउच है जो टेस्टिस, जो जिसके पास टेस्टिस है। अब ये इसको आपका जो टेस्टिस है, इसके पास वास डिफरेंस होता है, जो कि वास डिफरेंस जो कि स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाता है। यूरेथ्रा से वो बाहर निकल के वजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी में एंटर करता है, देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इतना क्लियर है। अब यार देखो, यहाँ पे आपका यूरेटर, ब्लैडर वगैरह है। आपका जो यूरेथ्रा होता है, इसमें से स्पर्म की पासेज ही नहीं हो रही होती है, यूरेथ्रा में आपके साथ साथ में यूरिन की भी पासेज हो रही होती है। यूरिन की भी पासेज आपकी यूरेथ्रा से भी होती है। तो इट इज़ अ कॉमन पासेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, ठीक है। और इसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको बोला जाता है पेनिस। द आउटर कवरिंग of the urethra is known as penis. The outer covering of urethra is known as penis. अब आपके यहाँ पे देख रहे हो आप, प्रोस्टेग्लैंड लिखा हुआ है। अभी प्रोस्टेग्लैंड, फिर ये आपका यहाँ पे आया है सेमिनल वेसिकल, इसको तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स है, यहाँ पे दिख रहे हो आपको ये। तो इनका क्या फंक्शन है, बेसिकली ये एक्चुअली करते क्या है कि इनके पास कुछ फ्लूइड्स होते हैं, दे आर हैविंग सम फ्लूइड्स, दे सिक्रीट सम फ्लूइड। अब ग्लैंड है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो सिक्रीट करेगा ही। तो ये सिक्रीट करता है फ्लूइड, जो कि क्या करता है, आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म का, ठीक है, उसको काफ़ी इजी बना देता है, ठीक है, उसको काफ़ी इजी बना देता है। तो देयर सिक्रीट सम द अदर फ्लूइड्स। अब देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। नाउ गाइस, टेस्टिस के बारे में ये सारा पढ़ लिया हम लोगों ने, वास डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया, हमने स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म नहीं पढ़ा ऑफ कोर्स। तो स्पर्म इज बेसिकली द मेल गैमिट और क्या बोलते हैं इसको, मेल जर्म सेल्स, मेल गैमिट और द मेल जर्म सेल। अब इनके पास क्या होता है, यू नो व्हाट, ये जो स्पर्म है ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो आपको यहाँ पे टेल दिख रही है ना, ये टेल पता है क्यों होती है, ये टेल इसके पास इसीलिए होता है ताकि इट कैन स्विम वेल, क्योंकि इट हैज़ टू एंटर इनटू द फीमेल बॉडी, इट हैज़ टू एंटर इनटू द फीमेल बॉडी थ्रू द वजाइना। सो ताकि ये स्विम करके जा सके, ये एक बेसिकली सेल ही होता है, तो ताकि ये जा सके व्हाट, इट हैज़ अ टेल। अब इसके पास यहाँ पे एक मिडल पीस होती है, क्या होती है, एक मिडल पीस होती है, इट हैज़ अ मिडल पीस। और मिडल पीस के पास जो दिखते हैं ना आपको, उस पर होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब मिडल की पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होती है, क्या ही यूज़ होगा, तो यार यूज़ कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि इसको एनर्जी देनी है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो एटीपी जनरेट कर रहे होते हैं, एटीपी फॉर्म कर रहे होते हैं। दैट आर योर, एटीपी का फुल फॉर्म गाइस याद रखना है, एडेनोइस ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोइस ट्राइफॉस्फेट,
एडिनोइस ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये है आपका एटीपी का फुल फॉर्म। अब आपका जो ये है ना, दिस आर नोन एज योर एनर्जी करेंसीज ऑफ द सेल। तो अब ये क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि एटीपी आर स्टोर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब एटीपी क्योंकि कौन जनरेट कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोल रहे हैं। अब ये पावर हाउस क्या देगा, एनर्जी देगा। क्यों, क्योंकि स्पर्म को मूव भी करना होता है ना, अपने आप उसको मूव भी करना, इट डजंट हैव व्हील्स, सो उसको खुद ही मूव करना है, तो एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो एनर्जी उसको दे रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके पास आता है हेड। अब वो जो हेड दिख रहा है ना आपको, उसके पास होता है न्यूक्लियस और साथ साथ में क्रोमैटिन मटेरियल। अब न्यूक्लियस ऑफ कोर्स हेरिडिटी का एक फैक्टर है, उसके पास क्रोमैटिन मटेरियल खुद का होता है, इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एज वेल। तो फिर उसके हेड पे क्या होता है, न्यूक्लियस। तो बेसिकली देखो स्पर्म को इन शॉर्ट आपको कैसे रखना है, देखो स्पर्म आपका किस तरह से होता है, यहाँ पे आपका आ गया स्पर्म का हेड, यहाँ पे आप मिडल पीस ले लो और फिर यहाँ से कुछ इस तरह से टेल। अब मिडल पीस पे पास क्या होंगे, इधर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब यहाँ पे हेड है, वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस, क्या होगा, न्यूक्लियस। तो इसको नेम कैसे करना है, ये आपका आ गया स्पर्म का टेल, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, मिडल पीस, मिडल पीस हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख सकते हो, हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया, सिर्फ मैं माइटो लिख देती हूँ, ठीक है, इन शॉर्ट। अब यहाँ पे ये क्या है, इट्स हेड हैविंग न्यूक्लियस, इट्स हेड इज हैविंग न्यूक्लियस, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो ये आपका था, क्या था, आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने एकदम क्लियर कर लिया। अब यार देखो, अब मूव ऑन करते हैं टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एग्जाम में ना इंटर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको ध्यान से देखना। दिस इज हाउ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लुक्स लाइक। तो इनके पास क्या होती है, ये देखो, एक पैर ऑफ टेस्टिस होती है, क्या होती है, पैर ऑफ टेस्टिस, तो सॉरी, पैर ऑफ ओवरीज, ठीक है, इनके पास होते हैं, अरे पैर ऑफ ओवरीज, पैर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन मैन, दैट वाज माय स्लिप ऑफ टंग, सॉरी गाइस फॉर दैट। दे आर हैविंग पैर ऑफ ओवरीज, ये दिख रहे हो, ये आपको बलून जैसा थोड़ा सा यहाँ पे, इनके पास क्या है, ये ओवरीज है, और एक ओवरी नहीं है, दो ओवरी है, एक इस साइड एक इस साइड, मीन्स दे आर हैविंग पैर ऑफ ओवरीज। फिर इनके पास क्या होता है, आपके फेलोपियन ट्यूब्स, जिनको ओविडक्ट्स भी बोलते हैं, ये दिख रही है आपको, ये आपकी क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब्स। और फिर इनके पास यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, तो फेलोपियन ट्यूब्स आर आल्सो नोन एज ओविडक्ट, इनको ओविडक्ट भी कहते हैं। अब आपका देखो आपका ओविडक्ट भी हो गया। अब ये यूटेरस दिख रहा है ना आपको, ये जो आपको यूटेरस दिख रहा है, यूटेरस में क्या होता है, जब जो बेबी है उसका पालन पोषण 9 मंथ्स तक कहाँ होता है, यूटेरस में होता है। कहाँ पे होता है, यूटेरस। जब देखो व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो में वो कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में वो कन्वर्ट होता है, और फिर एम्ब्रियो से क्या बनता है, वो फीटस, जब उसके बॉडी पार्ट्स आइडेंटिकल हो। अब फीटस जो होता है वो धीरे 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 बेबी में डेवलप होता है, तो वो कहाँ पे हो रही है पूरी डेवलपमेंट, इन द यूटेरस ओनली। अब यहाँ पे आपका सर्विक्स आ गया और वजाइना। अब सर्विक्स क्या और वजाइना, अब देखो इनके हम लोग सारे फंक्शंस भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो मैं इन शॉर्ट ओवरीज के बता दूं, तो ओवरीज जैसे मेल जर्म सेल्स आपके स्पर्म्स थे या फिर मेल गैमेट्स आपके स्पर्म्स थे, वैसे फीमेल जर्म सेल्स और द फीमेल गैमेट्स आर योर ओवम्स, सॉरी ओवरीज में बनते हैं वो, पर वो है ओवम, ठीक है, ओवम या फिर एग्स भी बोल सकते हो आप उनको। तो वो ओवम या एग्स कहाँ पे हो रहे होते हैं, जैसे टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म्स, वैसे ओवरीज में आपके ओवम या फिर एग्स होते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्शन होती है उनकी, यहाँ पे उनकी प्रोडक्शन होती है। जब एक गर्ल होती है ना, जब उसका बर्थ होता है, तब वहाँ पे उसके पास थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ओवम्स होते हैं उसकी दोनों ओवरीज में। लेकिन वो क्या होता है, इमेच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं हुए होते, वो इमेच्योर होते हैं, जो कि धीरे 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 जैसे ही पुबर्टी हिट करती है वो धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपकी पुबर्टी क्या है, पुबर्टी इज द पीरियड ऑफ लाइफ, एक ऐसा पीरियड आता है, पुबर्टी मतलब यार आपके लाइफ में एक ऐसा पीरियड आ रहा होता है जब आप फॉर एग्जांपल जब आप 11 से 13 साल के होते हो, तो
some changes start occurring inside your body. There are some several changes that take place in your body, like आपकी armpits पे hair growth हो रही है, pubic region पे hair growth हो रही है, facial hair बहुत ज़्यादा growth हो रही है, साथ साथ में आपके ना मतलब आपके जो स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो भी अपना वर्क थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, इसलिए पिंपल्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम होती है फेस पे ज़्यादा इस टाइम पे। साथ साथ में मेंस्ट्रुएशन भी होता है। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस होता है। अब बॉयज़ में अलग चेंजेस होते हैं, गर्ल्स में अलग चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। आगे हम लोग उन चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या होती है, पुबर्टी होती है। जब आपके बॉडी में चेंजेस हिट होना स्टार्ट होते हैं, दैट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। अब क्या होती है, जब गर्ल रीचेस दिस पीरियड ऑफ, जब वो है ना अपना पुबर्टी स्टार्ट होती है उसकी ये पीरियड, तो उनको बोला जाता है टीनेजर्स, नॉट ओनली गर्ल्स बट ऑफ कोर्स एवरीवन, ठीक है, उनको बोलते हैं टीनेजर, दैट इज स्पेशल नेम गिवन। अब जब आप टीन्स बन जाते हो ना, तो क्या होता है, ये जो इमेच्योर एग्स है वो साथ धीरे धीरे मेच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट हैपेंस, दे स्टार्ट मेच्योरिंग, और हर महीने एक एग रिलीज होता है। हर महीने क्या होता है, एक एग रिलीज हो जाता है ताकि वो फर्टिलाइज हो। एक एग आता है, बोलता है मुझे फर्टिलाइज होना है, ठीक है। तो जैसे देखो, एक एग इस ओवरी में से आया इस मंथ, पहले मंथ में, तो दूसरा एग नेक्स्ट ओवरी में से आएगा दूसरे मंथ में। मतलब दोनों ही ओवरीज में एक एक एग नहीं होते हैं, एक ही ओवरी में एक एग आपका बनता है, ठीक है, एक महीने में। अब यार ये देखो, ये आपने पढ़ लिया। अब ये था ओवरीज का फंक्शन देख लिया, और साथ साथ में ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो हैव द सेक्स हॉर्मोन्स, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है। फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स इनके पास होते हैं, जो कि होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है वो ओएस्ट्रोजन नहीं है, ध्यान रहे, ओएस्ट्रोजन काफ़ी दिक्कत कर लोगे आप लोग, तो इट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दीज आर द टू सेक्स हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द फीमेल ओवरी। ओके, सो अब क्या होता है कि इतना आप सबका क्लियर हो गया। अब जो स्पर्म्स हैं जो मेल बॉडी में से निकल रहे हैं, वो फीमेल बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, क्योंकि अगर वो फीमेल बॉडी में एंटर नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन, हाउ विल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि ये आपका फीमेल, आपकी फीमेल की ये है जर्म सेल, और ये आपकी मेल की जर्म सेल है, ठीक है। मेल की जर्म सेल ऑफ कोर्स स्पर्म ऐसी होती है, मैंने क्या ही ड्रॉ कर दिया, रुक जाओ मैं करती हूँ, रुको मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यस, यहाँ पे है ये पिक्चर मैंने जो लाई थी, देखो ये क्या है, ये आपकी ओवम है, ये आपकी फीमेल जर्म सेल, और ये आपके क्या है, स्पर्म्स है। ये दोनों जब एक साथ फ्यूज़ करेंगे, व्हाट विल हैपन, दे विल फ्यूज़। अब जब ये फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनने वाला है, व्हेन दे विल फ्यूज़ देन व्हाट इज गोइंग टू टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन। और तब बनता है, तब क्या बन रहा होता है, इन ऑर्डर टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बन रहा होता है। क्या बनता है, जाइगोट। फिर धीरे धीरे वो डेवलप होता है, वो बहुत ज़्यादा बार डिवाइड करते हैं। फिर जाइगोट क्या होता है, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग, जाइगोट देन आफ्टर कीप्स ऑन डिवाइडिंग। फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो के बाद फीटस का आपको एज दिखता है, जो आगे हम लोग पढ़ने वाला है ऑफ कोर्स। तो स्पर्म्स जो एंटर कर रहे होते हैं वो किस तरह से एंटर करते हैं, इट एंटर्स थ्रू वजाइना। व्हाट हैपेंस, इट एंटर्स थ्रू दिस वजाइना। वजाइना से वो एंटर कर रहे होते हैं इनटू द इनसाइड द फीमेल बॉडी। अब जो आपका ये देखो, आपका ये जो एग है, ये जो आपका एग है इसके अंदर, वो उसको भी तो पहुंचना है, तो उसको कौन पहुंचाता है, उसको पहुंचाता है बेसिकली आपका ये फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स हेल्प करते हैं उसको पहुंचने में, ठीक है। उनको क्या पहुंचने में मदद कर रहे हैं, आपके फेलोपियन ट्यूब्स पहुंचने में मदद कर रहे हैं यूटेरस में। देन आफ्टर व्हाट विल हैपन, द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इज गोइंग टू टेक प्लेस। अब यूटेरस जो है वो वजाइना में ओपन हो रहा होता है, ठीक है, यूटेरस एंड वजाइना में ओपन हो रहा होता है थ्रू दिस पोर्शन, जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है ना, दिस इज, इसको क्या बोला जाता है, सर्विक्स। इसको क्या बोलता है, दिस इज नोन एज गाइज, दिस इज नोन एज योर सर्विक्स, ठीक है। इतना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर है। अब ओवम का स्ट्रक्चर भी ज़रा एक बार ध्यान से देख लेते हैं, यहाँ पे मैं रब कर देती हूँ। हाँ, तो देखो आपका ये वाला भी एकदम कम्प्लीटली क्लियर है। अब क्या हो रहा होता है गाइज कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्या हुआ, जो स्पर्म था वो आया, हम लोग देखो लास्ट में रिवीजन भी कर लेंगे, अभी नहीं करते फिर सेशन लंबा हो जाएगा, लास्ट में रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो स्पर्म फिर पहुंचा और एग के साथ उसने फ्यूज़ किया, फर्टिलाइजेशन टुक प्लेस। अब फर्टिलाइजेशन एक बार होती है तो क्या होता है,
व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस व्हाट हैपेंस, तो फिर वो बनाता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। डेवलपमेंट इनटू एन एडल्ट और रीचिंग मैच्योरिटी इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। अब यार प्रोसेस तो हमने देख ली, लेकिन ये रिप्रोडक्शन करने के लिए ना हम लोग को मैच्योर होना पड़ेगा। वी नीड टू गेट सेक्सुअली मैच्योर, ठीक है, वी नीड टू गेट सेक्सुअली मैच्योर। अब वो पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन चेंजेस सेट, जब हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है, तो तब क्या हो रहा होता है, हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो वो क्या हो रहे होते हैं, तब डेवलप हो रहे होते हैं, दे आर डेवलपिंग एट द टाइम, वो मैच्योर हो रहे होते हैं। तो वो कब हो रहे होते हैं? एट द एज ऑफ पुबर्टी। अब पुबर्टी की एज बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट होती है, जो हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। तो पुबर्टी जब होती है तो बहुत सारी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड योर बॉडी, अ लॉट ऑफ डिफरेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड योर बॉडी। तो देयर आर लाइक, हर किसी को होती है ये सारी चेंजेस, है ना। तो व्हाट दे लीड टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। वो क्यों होती है? ताकि आप सेक्सुअली मैच्योर हो सको और सेक्स ऑर्गन्स जो हैं आपके बॉडी में वो वेल डेवलप हो सके, एंड द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। योर बॉडी कैन रिप्रोड्यूस। आपका बॉडी क्या कर पाएगा? इट कैन रिप्रोड्यूस। अब देखो, जो एज होती है वो बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट होती है। अगेन आई एम टेलिंग यू, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन क्या क्या चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। तो देखो चेंजेस हम लोग आगे फॉर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पहले एज का देख लो यहाँ पे। फॉर गर्ल्स पुबर्टी कैन स्टार्ट एनीवेयर बिटवीन 8 and 13। 8 और 13 के बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली जो एवरेज होती है ना, एवरेज आपकी होती है 11 to 13। ये एवरेज होती है, तो ये एवरेज होती है मोस्टली हर एज जो आपका है ना, पुबर्टी का एज होता है ना, इट डिफर्स फ्रॉम अ इंडिविजुअल टू दी अदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिफर करता है, लेकिन ये क्या है, एकदम एवरेज निकाला हुआ है। अब देखो बॉयज़ में क्या होती है, बॉयज़ में लाइक गर्ल्स के बाद ही पुबर्टी का जो एज होता है ना वो स्टार्ट होता है। बॉयज़ ना जल्दी मैच्योर नहीं होते, जैसे आपने एग्जाम्पल में देख लिया होगा। गर्ल्स में क्या होता है कि आप शादी 18 साल के बाद कर सकते हो, 18 साल से पहले लाइक गेटिंग मैरिड इज इलीगल। बट बॉयज़ में क्या होता है, इट्स लाइक 21 और समथिंग, है ना, इजंट इट, इट्स 21 और 22 समथिंग। तो बॉयज़ में ऐसा एज ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज बॉयज़ की जो मेच्योरिटी होती है इट टेक्स प्लेस लेटर देन गर्ल्स, थोड़ा लेट होता है। ठीक है, दे गेट सेक्सुअली मेच्योर आफ्टर अ गर्ल गेट्स मेच्योर। गर्ल्स देखो, गर्ल्स में क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग मेच्योर एट 11 to 13 एज, लेकिन बॉयज जो होते हैं मेनली 14 to 15 एज से उनकी मेच्योरिटी पीरियड स्टार्ट होती है। ये पुबर्टी हिट करते हैं, दे हिट दैट पुबर्टी लेटर। अब पुबर्टी में देखो एकदम आपके नॉर्मल जो चेंजेस आर टेकिंग प्लेस पुबर्टी में, बहुत एकदम नॉर्मल चेंजेस जो होते हैं जो आप देख रहे होगे, तो वो सबसे पहला क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट। आपकी हाइट बढ़ रही है, इंक्रीज इन हाइट बढ़ जा रही होती है। हाइट नहीं बढ़ती क्या, ऑफ कोर्स आपकी हाइट बढ़ रही होती है। देन आपका हेयर ग्रोथ हो रहा होता है, ठीक है, आपके क्या हो रहे होते हैं, हेयर ग्रोथ हो रहे होते हैं। तो ये सारी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड योर बॉडी। साथ साथ में बॉयज़ उनके वो क्या करते हैं, दे कैन मेक मसल्स, उनके मसल्स ग्रो हो रहे होते हैं शोल्डर वाले। लेकिन गर्ल्स में क्या हो रहा है, हिप रीजन में फैट डिपोजिशन एंड हिप रीजन में क्या होता है, फैट डिपोजिशन, फैट हो जाता है वो एरिया। तो ऐसे ही बॉडी स्ट्रक्चर में और हर चीज़ में होता है। लेकिन बॉयज़ में क्या होता है, एक गर्ल है, अच्छा एक बॉय 8 साल का है और एक गर्ल भी 8 साल की है, तो एक चीज़ क्या होती है जो एकदम एवरेज है, एकदम जिसको ऑब्जर्व किया गया है मोस्ट ऑफ द टाइम, आपका अगर बॉय इतना लंबा है तो अगर फॉर एग्जांपल ये बॉय है, ठीक है, और ये क्या है, गर्ल है, तो अगर आपका बॉय इतना लंबा है तो गर्ल आपकी इतनी लंबी होगी, ठीक है, ये होता है। फिर क्या होता है, पुबर्टी हिट करने के बाद आपकी गर्ल की जो हाइट होती है बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन बॉयज़ की क्या होती है, वो एक बार में ऊपर डायरेक्ट, इसीलिए बॉयज़ ना गर्ल्स से ज़्यादा हाइट में होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यार ये भी देखो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा आप सबको। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक बॉय को एक गर्ल से डिफर कर रहे होते हैं, ठीक है। हाइट तो बॉयज़ की भी बढ़ती है, गर्ल्स की भी बढ़ती है, लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं बॉडी में दैट डिफर्स अ बॉय फ्रॉम अ गर्ल, ठीक है, उनको सेक्सुअली डिफर करते हैं। तो देखो इन बॉयज़ में क्या हो रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स द लैरिक्स का है, आपका जो वॉइस बॉक्स है वो क्या करता है, वो डेवलप हो रहा होता है, और फिर जो बॉयज़ की आवाज़ होती है ना वो होर्स बन जाती है, दे हैव अ होर्स वॉइस, ठीक है। जैसे देखो मेरी आवाज़ आपको लग रही होगी छिपकली जैसी, लग रही है कि नहीं लग रही, एकदम पतली सी है। आई एम हैविंग अ स्वीट वॉइस, ऑफ कोर्स नॉट स्वीट बट स्टिल, ठीक है,
ठीक है, अपनी तारीफ़ें कर लेनी चाहिए कभी कभी, बिकॉज अदर्स तो करते नहीं है। तो ऐसी होती है ना जब आपकी आवाज़ पतली सी होती है। लेकिन बॉयज़ में क्या होती है, देयर आवाज़ इज लाइक हॉर्स, ऐसे। बॉयज़ में क्या होता है, देयर आवाज़ इज हॉर्स। तो हॉर्स आवाज़ उनकी होती है ना, आपने उनकी आवाज़ देखी होगी, उनका पिच जो होता है ना गर्ल्स से डिफरेंट होता है। उनकी आवाज़ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हॉर्स होना स्टार्ट हो जाती है, कठिन सी होती है, थिक होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन गर्ल्स में वही आवाज़ थिन होना स्टार्ट होती है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। अब देखो बॉयज़ में एक और क्या चीज़ हो रही है कि ग्रोथ ऑफ हेयर, लाइक स्किन पे, अंडर आर्म्स पे, फेस पे, हैंड्स पे, लेग्स पे, हर जगह आपका हेयर ग्रोथ हो रहा है। साथ साथ में एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल्स फॉलोड बाय पेनिस, आपके टेस्टिकल्स और पेनिस भी एनलार्ज हो रहे होते हैं इन योर प्यूबिक रीजन। अब टेस्टिस ग्रो एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, क्या हो रहा है, आपके टेस्टिस जो है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहे होते हैं, मेच्योर हो रहे होते हैं, एंड देन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग योर मेल गैमेट्स नोन एज स्पर्म्स, ठीक है, मेल गैमेट्स। अब गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, गर्ल्स में देखो ध्यान से, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, डार्कनिंग ऑफ स्किन अराउंड निपल्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ब्रेस्ट। नाउ इन गर्ल्स द breast okay, basically they start developing, and what happens after then, the tip of the breast that starts darkening, ठीक है, वो धीरे धीरे डार्क होती है। Now the other thing is growth of hair in other areas of skin like underarms, face, hands, legs and pubic region as well। यहाँ पे क्या होता है, एक थिक लेयर ऑफ हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग। अब इट डिफर्स, कितना थिक होगा हेयर, डिफर्स फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन ड्यू टू हॉर्मोन्स ऑफ कोर्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूटेरस एंड ओवरी। अब यूटेरस जहाँ पे बेबी डेवलप होगा उसकी साइज बढ़नी है, ओवरीज की साइज बढ़ रही होती है इस लाइफ में, सो दैट दे कैन सेक्सुअली बिकम मैच्योर। बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ना व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो देखो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम लोग in our day-to-day terms we call this periods, ठीक है, in our day-to-day terms we call this periods। तो ये क्या होती है, ये बिगिन होती है, ये एक साइकिल होती है 28 डेज की। कितनी साइकिल होती है, 28 डेज की साइकिल होती है, जो कि चल रही होती है ऑल अराउंड 28 डेज, एंड दिस टेक्स, मतलब हर मंथ होती है ये, लाइक फॉर 3 to 4 days और 4 to 5 days एवरेज ये होती है। इसमें क्या हो रही होती है, ब्लीडिंग। व्हाई डज इट ब्लीड, आपका जो यूट्रस होता है दैट प्रिपेयर्स अ थिक एंड अ स्पॉन्जी लेयर, वो एक थिक स्पॉन्जी लेयर प्रिपेयर कर देता है बेबी डेवलपमेंट के लिए। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन डिड नॉट टेक्स प्लेस, उसके 2-3 दिन बाद क्या करता है, एक दिन बाद वो जो उस लेयर है उसको शेड कर देता है, ब्रेक कर देता है, जो कि फिर ब्लीड करती है ब्लड के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, वो बाहर निकलती है थ्रू द वजाइना। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे। अब ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि कॉमन है इन बॉयज एज वेल एज इन गर्ल्स, ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विच आर कॉमन इन बॉयज एंड गर्ल्स। So first of all, growth of pubic hair. Growth of hair in the pubic region is absolutely common in boys and girls, दोनों में होता है। Growth of the reproductive organs. आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको ग्रो होना है, वो बॉयज़ में ग्रो हो या गर्ल्स में, दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को तो ग्रो होना ही है। साथ साथ में पिंपल्स वगैरह क्यों होती है बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि आपका स्किन ऑयली होना स्टार्ट होता है। वाई, बिकॉज द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स जो आपकी स्किन पे हैं वो जो है आपकी अपनी एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। अभी आपका देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसकी मैंने अभी बात करी थी, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे आ गई है। तो देखो द ओवरी रिलीजेस, देखो इसको आप इतना रीड कर लो, बहुत अच्छा होगा, आप रीड करोगे ना तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर दूँगी। तो क्या होता है, आपकी जो ओवरीज होती हैं आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाते हैं आपको, कहाँ था, यस इसके बाद है, यस दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, गॉट दिस। तो आप इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो ये आपकी ओवरीज दिख रही है आपको, ये ओवरीज क्या करती है, एक एग हर साल रिलीज करती हैं, हर महीने रिलीज करते हैं, सॉरी गाइस, सॉरी अगेन स्लिप ऑफ टंग, हर महीने एक एग रिलीज कर रही है, एग रिलीज करती है। तो फिर क्या होता है, हर महीने जब वो एक एग रिलीज करती है तो आपका जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, ताकि जब ये एग फर्टिलाइज होगा, क्या होगा, ये एग जब फर्टिलाइज होगा, व्हेन स्पर्म विल एंटर एंड दिस विल फर्टिलाइज, तो क्या होगा, बेबी के डेवलपमेंट होगा। अब बेबी को डेवलप करना है, उसके लिए एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा,
उसके लिए आपके जो यूट्रस महाराज हैं वो क्या करते हैं, एक मतलब अपने आप को थोड़ा स्पंजी का बना लेते हैं और थिक बना लेते हैं। क्या करते हैं, दे मेक देमसेल्व्स अ बिट स्पंजी एंड थिक। व्हाट डू दे मेक देमसेल्व्स अ बिट स्पंजी एज वेल एज थिक, स्पंजी एंड थिक। अब वो अपने आप को स्पंजी और थिक तो बना लिए, लेकिन एग तो फर्टिलाइज हुई ही नहीं, एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या हो रहा, आपका इनर लाइनिंग को उन्होंने स्पंजी थिक बना लिया, तो लेकिन वो तो एग तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक दो दिन तक रहता है फर्टिलाइज होने के ना बाद, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे शेड होना स्टार्ट होता है, ब्रेक होना स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स शेडिंग एंड ब्रेकिंग। अब व्हेन इट स्टार्ट्स शेडिंग एंड ब्रेकिंग, तब क्या हो रहा होता है गाइस, तो वो आपकी वजाइना के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ब्लड निकल रहा होता है। एवरी मंथ दिस हैपन्स टू गर्ल्स। ठीक है, ये 28 डेज का साइकिल होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया। एंड मतलब ये 5 दिनों तक 8 दिनों तक रहता है। दिस प्रोसेस लास्ट फॉर 2 to 8 days, ठीक है, और हर मंथ होता है। और इस साइकिल को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन। इन नॉर्मल टर्म वी कॉल इट पीरियड्स। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है आपका, दिस इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल बॉडी, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट होता है, व्हेन दे हिट देयर पुबर्टी। वंस दे हिट देयर पुबर्टी, दिस स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, ठीक है। अब गाइस चलिए मूव ऑन करते हैं। देखो, the ovary releases one egg every month and the uterus prepares itself every month to receive a fertilized egg. The inner uterus lining, that is endometrium, becomes thick and is supplied with blood to nourish the embryo. ठीक है, उसको एम्ब्रियो को नरिश भी करना होता है। सेकंड क्या है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन द यूट्रस लाइनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, हैंस इट ब्रेक्स डाउन एंड इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस थ्रू द वजाइना ऑफ द गर्ल्स। This process lasts for 2 to 8 days. This process occurs every month and is known as menstruation. Hence, the menstrual cycle is the reproductive cycle in the female body. It begins with the onset of puberty. Now, development of an embryo inside the body. एम्ब्रियो है ना आपके बॉडी में डेवलप कैसे हो रहा होता है, हाउ इज एम्ब्रियो डेवलपिंग इनसाइड योर बॉडी। देखो ये चैप्टर कितना लंबा है, एक टॉपिक इसका इतना लंबा है। लास्ट टॉपिक भी लंबा था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये दूसरा टॉपिक भी लंबा है। इसीलिए देखो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इसको लास्ट ये सेशन के एंड के 10 मिनट्स में रिवाइज कर लेंगे, एंड के 10 मिनट में रिवाइज करेंगे। साथ साथ में इसके रिविजन नोट्स जिनकी आपको ज़रूरत होगी पढ़ने के लिए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अलग रिवीजन नोट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अलग रिवीजन नोट्स आपको मेरे सेशन नंबर 3 में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सेशन नंबर 3 के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। सो अब देखो, एम्ब्रियो आपके बॉडी में बन तो गया, वो डेवलप कैसे होगा। तो एक बार जब आपका जाइगोट बन जाता है ना, तो फिर धीरे धीरे वो धीरे धीरे डेवलप होने स्टार्ट हो जाता है। आपका जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, फिर वो धीरे धीरे बहुत सारे सेल्स बना लेता है, वो बहुत सारे सेल्स बनाता है, फिर वो डेवलप होता है। अब क्या होता है कि अब वो जो एम्ब्रियो है देन वो क्या बनेगा, इट विल फॉर्म अ बेबी फीटस, ठीक है। जब उसके बॉडी पार्ट्स आइडेंटिकल हो ना, कि आप देख पा रहे हो यस ये बेबी के हैंड्स है, ये बेबी के लेग्स है, तो उसको क्या बोला जाता है, उस स्टेज को फीटस बोलते हैं। फिर वो धीरे धीरे ग्रो होगा, और इसी जो ग्रोथ होती है ना, वो हो कैसे रही है, बेसिकली वो ऐसा होता है कि आपके यूट्रस में वो डेवलपमेंट होती है, यूट्रस में ये डेवलपमेंट होती है, जिसको वूम भी कहा जाता है। क्या वूम भी कहा जाता है, द वूम ऑफ अ मदर। हियर द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, ये भी पढ़ लिया। The zygote in the uterus or womb divides many times to form an embryo। और इसको क्योंकि जाइगोट बहुत ज़्यादा बार है ना एम्ब्रियो बनने के लिए डिवाइड करता है, ये क्या करती है, दिस लीड्स टू प्रेगनेंसी। यही प्रेगनेंसी को this only leads to pregnancy. Within a span of some months, the embryo starts developing limbs, hands, legs, etc. ठीक है, तो एक छोटा सा ह्यूमन बीइंग बन जाता है, मिनिएचर ह्यूमन बीइंग, छोटा सा ह्यूमन बीइंग। और जब उसके पार्ट से रिकग्नाइज कर सके तो उसको फीटस बोलता है। अब जब वो बॉडी में होता है ना, जब वो यूट्रस में होता है, तो उसको जो खाना वगैरह है वो कौन दे रहा होता है, उसकी मदर दे रही होती है। मदर कैसे दे रही होती है, थ्रू इट्स ब्लड के थ्रू वो उसको खाना वगैरह प्रोवाइड कर रही होती है। अब यार वो जो मदर के ब्लड से है ना, तो उससे उसका न्यूट्रिशन उस तक पहुँच रहा होता है। क्या मदर के ब्लड से उस पर बेबी को न्यूट्रिशन जा रहा होता है, इसलिए मदर हैज़ टू बी हेल्दी टू गिव अ हेल्दी बेबी, इजंट इट? एब्सोल्युटली यस गाइस। तो इस तरह से क्या होता है, ये हो रहा होता है। अब आपका जो इसको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल रहा है,
मदर के ब्लड से, वो एक बहुत स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलता है। उस टिश्यू को क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा। उस टिश्यू के क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा इज द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू जिसके हेल्प से मदर का ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिशन होता है वो एम्ब्रियो तक पहुंचाया जाता है। किस तक पहुंचाया जाता है? एम्ब्रियो तक पहुंचाया जाता है। अब क्या होता है, अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद उसके बर्थ तक जो पीरियड होता है उसको बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड, उसको क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। अब आपका ये जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो मेनली गेस्टेशन पीरियड मेनली कितना होता है? ये 9 मंथ्स का। ये पीरियड कितना होता है? मेनली 9 मंथ्स का होता है। कितने मंथ्स का होता है? 9 मंथ्स का। इसलिए फिर 9 मंथ्स के बाद बेबी की डिलीवरी होती है। तो द जाइगोट, ये सारा देखो आप रीड कर लेना, मैं रीड नहीं कर रही, फिर लंबा हो जाएगा सेशन। हाँ, द फुल टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इनटू अ फुली डेवलप्ड इज नोन एज गेस्टेशन। ये भी पढ़ लिया। गेस्टेशन पीरियड इज अबाउट 280 डेज, जिसको बोल रहे हैं 9 मंथ्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ओके, अब उसके बाद क्या होता है, एक बार आपका बेबी डेवलप हो गया, फिर जब उसका बर्थ हो रहा होता है तो उसके बर्थ में क्या होता है, उसको पुश किया जाता है फ्रॉम द फीमेल बॉडी थ्रू वजाइना। उसको वजाइना से बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है थ्रू द यूट्रस के जो मसल्स होते हैं ना, वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, वो कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं ताकि उसको वजाइना के थ्रू बेबी को बाहर निकाला जा सके फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है, उसको वजाइना के थ्रू बाहर निकाला जा सके, बेबी बर्थ ऐसे हुआ जाता है। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद 10 मिनट रिवीजन करेंगे। बट व्हाट अबाउट द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन एनिमल्स विच ले एग्स? फॉर एग्जांपल आपके हो गए चिकन्स, बर्ड्स, ठीक है, तो इनके साथ क्या हो रहा होता है? तो इनके साथ कुछ नहीं, बस इनके साथ एक छोटी सी चीज़ होती है कि देखो, इनहेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब एग आपका ओविडक्ट से ट्रैवल होके जाता है, इट गेट्स कवर्ड विद वेरियस प्रोटेक्टिव लेयर्स इंक्लूडिंग द शेल। आपका जो एग का शेल होता है ना, आपका एग होता है, उसके ऊपर एक शेल होता है, जानते हो, एक शेल होता है जिसको जब आप एग को खा रहे होते हो ना, तो उस शेल को आपको हटा के खाना होता है। तो जो शेल है ना, वो बॉडी में बनता है। क्यों बनता है? ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। जैसे आपने देखा ना, फीमेल बॉडी में क्या हो रहा होता है, यूट्रस एक लाइनिंग बना रहा होता है, यूट्रस प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे यूट्रस तो है नहीं, उसको तो इसके अंदर ही प्रिपेयर करना होता है, तो वो लाइनिंग को क्या बोलते हैं? शेल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक बार वो एग ले कर दे, एक बार वो अपने एग्स को ले कर देता है, इट लेज एग्स। फिर क्या होता है, 3 वीक्स के बाद वो एक चिक बन जाता है। वो एम्ब्रियो जो उसके अंदर होता है, 3 हफ्तों के बाद वो चिक बन जाता है। अब आपने देखा होगा ना कि जो मुर्गे होते हैं, मतलब मुर्गे ऑफ कोर्स हेन्स जो होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, अपने अंडों पे बैठे हुए रहते हैं। क्यों अंडों पे बैठे हुए रहते हैं? ताकि वो एग है ना वार्म रहे, ताकि वो एग वार्म रहे और उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिले, इट गेट्स प्रॉपर टेम्परेचर, इसीलिए वो ऐसा कर रहे होते हैं। तो अब ताकि अंदर वो एम्ब्रियो है ना, वो धीरे धीरे चिक में डेवलप भी हो रहा हो। अब देखो, इन eggs after fertilization when the egg travels through the oviduct, it gets covered with various protective layers including the shell. The hen lays the eggs and it takes around 3 weeks for the embryo to develop into a chick. अब देखो गाइस, अब हम लोग, मैंने प्रॉमिस करा था कि रिवीजन करेंगे, इसीलिए हम लोग लाते हैं यहाँ पे एक रिवीजन पेज। यहाँ पे आ गई रिवीजन पेज, ठीक है, तो लेट्स ब्रिंग अ रिवीजन पेज हियर। यहाँ पे आ गई रिवीजन पेज। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट का रिवीजन होगा छोटा सा, आप चाहो तो ये स्किप कर भी लो, लेकिन आई विल रिकमेंड यू टू नॉट स्किप दिस पोर्शन बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको इस रिवीजन पेज से काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑफकोर्स सीखने को मिलेगा, आप रिवाइज कर पाओगे चीज़ों को ईजीली। तो रिवाइज करने में सबसे पहले आते हैं हम लोग, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने रिवाइज करा था सेशन के स्टार्टिंग में, इसलिए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस कैसे हो रही है वो रिवाइज करने वाले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, उसको रिवाइज करने वाले। तो सबसे पहले यार बात आती है पुबर्टी की, जहाँ से वो सारी चीज़ें बिगिन होती है। पुबर्टी क्या होता है? इट इज़ द एज एट विच सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या होता है? सेक्स हार्मोन्स। फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्या है? एस्ट्रोजन, ठीक है, आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, आधा ही लिखा है मैंने ऑफ कोर्स। और फिर आपके मेल सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? आपके टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस कर रही होती है, और ये कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं। अब ये देखो, अब ये एक बार ये हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ना योर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आप में दिखते थे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखो एकदम सिंपल है, इसलिए वो मैं रिवाइज ऑफ कोर्स नहीं कराऊंगी।
फिर जो जो चीज़ें हो रही होती है वो क्यों हो रही होती है, आपके जो चेंजेस हो रहे हैं आपके बॉडी में वो आपके मैच्योरेशन के लिए होते हैं, ताकि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो सके। कॉमन चेंजेस हो गए आपके लाइक ग्रोथ ऑफ हेयर, आपकी स्किन में पिंपल्स हो जाना, इंक्रीजिंग ऑफ साइज, और देखो डार्कनिंग ऑफ निपल ऑफ द टिप ऑफ ब्रेस्ट, मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग, जो आपके पीरियड्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही होती है, बिकॉज ऑफ पुबर्टी हैज़ हिट, और आपकी बॉडी को अब आपको रिप्रोड्यूस करने के लिए मैच्योर होना है। अब इसके लिए आपको ऑफ कोर्स हेल्दी रहना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अब यार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, उनके पास होता है, देखो एक यहाँ पे ड्रॉ करें क्या, देखो गाइस प्लीज़ नॉट जज माई ड्राइंग इज़ लिटरली वेरी बैड, ठीक है, तो जज मत करना, ठीक है। फिर भी मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, माउस से ड्रॉ करना इट्स लिटरली टू डिफिकल्ट। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होती है, आपका ये ब्लैडर होता है, और यहाँ पे यूरेटर होता है, वो तो आपने पढ़ा होगा ना, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी यूरिनरी सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होता है, जानते हैं आप ये ग्लैंड्स कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, आपके प्रोस्टे ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे एक प्रोस्टे होता है, एक सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टे ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल आपका होता है। अब फिर क्या हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद यहाँ से एक ऐसी सारी चीज़ें होती हैं इस तरह से आपके यहाँ तक, यहाँ पे आपकी टेस्टिस होती है, क्या होती है यहाँ पे टेस्टिस होती है। अब जो आपके टेस्टिस होते हैं इट इज़ इन द स्कॉर्टम। अब टेस्टिस से आपका स्पर्म यहाँ तक बाहर तक कौन लेके जाएगा गाइस, एनी आइडिया, यूरेथ्रा लेके जाएगा, ठीक है, यूरेथ्रा लेके जाएगा। इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन बोथ, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब देखो एकदम सिंपल टर्म्स में मैं अगर आपको ये समझाऊँ, एकदम सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको ये समझाऊँ ताकि बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, तो हो क्या होता है, टेस्टिस आपकी स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है, टेस्टिस क्या कर रही है, आपकी स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है। कौन स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है। स्पर्म प्रोड्यूस करने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो कहाँ जा रही है, यूरेथ्रा के लाइनिंग के थ्रू वो आपकी पेनिस से बाहर निकल जा रही है, ठीक है, उसके पेनिस से वो बाहर निकल जा रही है। बाहर निकलने के बाद क्या कर रही है, वो फीमेल बॉडी में वजाइना के थ्रू एंटर कर रही है। इट इज एंटरिंग इनटू द फीमेल बॉडी थ्रू द वजाइना के बाद वो कहाँ जाती है, वो जाती है आपके एग को फर्टिलाइज करने। फर्टिलाइजेशन टेक्स, जब वो दोनों एग्स फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक बार जब लेता है, वंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो आपका जाइगोट फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्म हो रहा है। जाइगोट के बाद क्या हो रहा है आपका गाइस, जाइगोट एक बार आपका फॉर्म हो गया, फिर वो धीरे धीरे इट इज गोइंग टू डिवाइड, वो डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। एक सेल विल फॉर्म मेनी सेल्स, और डिवाइड होने के बाद व्हेन इट फॉर्म्स अ मास ऑफ सेल्स दैट विल बी नोन एज एम्ब्रियो। आपका जो एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो जब ऐसा एज आएगा जब आपका एम्ब्रियो के बॉडी पार्ट्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फीटस। अब वो धीरे धीरे वो फीटस एक मिनिएचर बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक बेबी में बन जाएगा धीरे धीरे। वो कहाँ पे हो रहा होता है, वो यूटेरस में हो रहा होता है। कहाँ पे हो रहा होता है, यूटेरस में हो रहा है। यूटेरस में कैसे हो रहा होता है, वो यूटेरस में आपके थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग होती है जो कि हेल्प कर रही होती है इस पूरे प्रोसीजर को लेने के लिए। अब यूटेरस के पास क्या होती है, एक स्पेशल टिश्यूज, उनको क्या बोला जाता है गाइस, आपको वो स्पेशल टिश्यूज़ के नाम याद रखने हैं। उसको बोला जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या कर रही होती है, मदर ब्लड से न्यूट्रिशन पहुंचाने में मदद करती है। प्लेसेंटा हो गई आपकी। अब इतना हो गया, अब उसको जब तक आपका वो बेबी, जब तक वो डिलीवरी तक जो मतलब वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो जाता है, तो और वो उस स्टेज में नहीं आता है कि अब वो फीमेल बॉडी से बाहर निकाला जाए, तो तब तक कौन सी पीरियड होती है, गेस्टेशन पीरियड होती है। कौन सी पीरियड होती है, गेस्टेशन पीरियड होती है। अब आपका व्हेन गेस्टेशन पीरियड टेक्स प्लेस, वो कितने टाइम की होती है, वो आपकी 280 डेज और 9 मंथ्स की होती है। कितने मंथ्स की होती है, 9 मंथ्स की आपकी गेस्टेशन पीरियड होती है। अब गाइस इतना देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा इतना पूरा क्लियर हो गया। अब ये पूरा प्रोसेस कब का था, ये पूरा प्रोसेस तब का था जब आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है। एग क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। अब एग अगर फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस। अब मेंस्ट्रुएशन किसको क्या बोलते हैं, इन सिंपल टर्म्स वी कॉल इट पीरियड्स। अब उसमें क्या हो रहा था, आपका जो यूट्रस का थिक लाइनिंग बना वो धीरे धीरे शेड होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, इट विल स्टार्ट शेडिंग, ब्रेक होना स्टार्ट होगा। अब वो एक बार शेड हो रहा है, वो एक बार ब्रेक हो रहा है, धीरे धीरे फिर क्या करेगा, उसको ब्रेक होगा, फिर वो वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा फ्रॉम द फीमेल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, देखो
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑफ कोर्स क्लियर हो गया पूरा, एक बार में हम लोगों ने 10 मिनट में रिवाइज कर लिया। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब एग फर्टिलाइज होता है नहीं होता है। साथ साथ में हाँ गाइस, कुछ STDs भी ऐसे डिसीजेज होते हैं। और ये ओके क्या हो गया यार? ओके नाउ दिस इज फाइन। तो गाइस देखो, कुछ STDs डिसीजेज होते हैं जिनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये डिसीजेज क्या करते हैं जानते हो? अगर इफ एक कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे एक हेल्दी पर्सन में ये डिसीजेज जा सकते हैं थ्रू सम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इन डिसीजेज को STD बोलते हैं, जैसे कि आपके एड्स हो गए, ठीक है, आपके वॉर्ड्स हो गए। तो ये सारे डिसीजेज जो होते हैं ना, वो एक हेल्दी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब आपका कई बार है ना ऐसा भी होता है कि ये डिसीज का हो गया। अब एक और टर्म जो आपको याद रहे वो है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसा टर्म है जिसको बोला जाता है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का व्हेन इट टेक्स प्लेस, जब भाई आपको जैसे फॉर एग्जांपल लड़की हो गई, आपको लड़की नहीं चाहिए, आपको लड़का चाहिए, तो आपने पहले ही, ठीक है, आपने पहले ही क्या कर लिया कि पता कर लिया कि हाँ कॉन्ट्रासेप्शन। देखो बर्थ, ये तो बर्थ कंट्रोल होता है, ये अलग है। मैं दूसरी बात कर रही हूँ, ध्यान रहे, मैं दूसरी यहाँ पे बात कर रही हूँ जिसको बोला जाता है फोइटिसाइड, फीमेल फोइटिसाइड। इसमें क्या हो रहा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लड़की हो गई, आपको लड़की नहीं चाहिए, तो आपने पहले ही पता कर लिया कि मेरे अंदर जो बेबी का अपने जो सेक्स है, जेंडर है, वो पहले ही जब पता कर लेते हो तो उसको क्या बोला जाता है? फीमेल फोइटिसाइड, जो कि इलीगल है, ठीक है, इट इज़ अ लीगल ऑफेंस ऑफ कोर्स। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब बर्थ कंट्रोल, मतलब आप बर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं। यू डू नॉट वांट टू इफ द वुमेन इज नॉट रेडी फॉर प्रेगनेंसी, तो बर्थ कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पिल्स खा सकते हो, ओरल पिल्स जो आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स दे जाते हैं। सर्जिकल मेथड होता है जो कि 2 टाइप के होते हैं, एक वैस्केटॉमी एंड एक ट्यूबकेटॉमी होता है, जो मतलब उसमें क्या होता है कि वास डेफरेंस और ओविडक्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है वहाँ पे। अब आपका लूप और कॉपर टी भी रख दिया जाता है यूट्रस में, लेकिन इससे यूट्रस में इन्फेक्शंस हो जाती हैं कई बार, और ऑफ कोर्स सर्जरी इज़ ऑल्सो नॉट वेरी सेफ। अब आपके एक आता है मैकेनिकल बैरियर, मतलब जिसमें आपके सर्विकल कप्स और कॉन्डम्स काम आते हैं, जो कि पेनिस पे पहना जाता है। सर्विकल ठीक है, एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं जिससे स्पर्म की ट्रांसफ़र हो ही नहीं रही होती है। एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं जिससे स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती है। या गाइस, दिस वाज इट अबाउट द सेशन। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द सेशन, और पूरा सेशन आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। देखो ये चैप्टर है ना, एकदम ईजी चैप्टर है, बस लेंथी है, लेंथी के लिए चैप्टर बदनाम है। तो अगर आपको इसके रिवीजन नोट्स चाहिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के सब्जेक्ट के लिए, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मेरे पार्ट 3 वीडियो के। तो पार्ट 3 वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे साथ साथ में। तो बने रहे पार्ट 3 वीडियो तक। दिस इज इट अबाउट द वीडियो। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।